कॉमन टॉपिक्स पे चले जाएंगे। हाउ एड्स इज ट्रांसमिटेड, है कि नहीं? तो ये सब कॉमन टॉपिक्स हैं कि एड्स ट्रांसमिट कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहला या जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओके, तो वो हम लोग को डिस्कस करना है। तो हाउ एड्स इज ट्रांसमिटेड, है कि नहीं? बोलिए कैसे ट्रांसमिटेड है। मेन जो मैकेनिज्म है, सो दैट इज बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, है कि नहीं? सो इसीलिए वो मोस्टली ज्यादा से ज्यादा पार्ट शेयर कर देता है। तो हाउ डू वी गेट HIV, ठीक है? सो उसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगेन आई एम टेकिंग इट फ्रॉम द HIV website to avoid any controversy. So you can only get HIV by coming in contact with specific bodily fluids of someone living with the virus. Okay, तो उसमें नंबर 1 है HIV can be transmitted during unprotected sex. Okay, 2 है through sharing injecting equipment. Okay, 3 है from mother to baby during pregnancy, birth and breastfeeding. And नंबर 4 है थ्रू contaminated blood transfusion, ठीक है? तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है हाउ इट स्प्रेड्स। यूजिंग condoms during sex or taking PrEP consistently, this is prions, the medicines will protect you from HIV infection through sex. ओके, अगर आप किसी HIV पेशेंट के साथ इंटरकोर्स कर रहे हैं तो दिस इज अ टाइप ऑफ ब्लॉक। तो अगर आप ये ब्लॉक ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड अगर आप कॉन्डम यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ टेकिंग HIV ट्रीटमेंट इफ यू आर ए न्यू और एक्सपेक्टेंट मदर एंड अवॉइडिंग शेयर्ड इंजेक्शंस, तो इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। Effective treatment can lower the blood viral load. मीन्स जनरली वायरस क्या है, आउटसाइड द बॉडी किसी काम का नहीं है। Yes, sir. Outside the host cells it is of no use. Okay, so that is the case. So effective treatment can lower the viral load of someone living with HIV to such low levels that they are undetectable in blood test. This means that they cannot pass on HIV, ठीक है? सो ये सब हमारे प्रिवेंटिव्स हैं बेसिकली, या डिफेंस, एंड दिस इज हाउ वन कैन गेट द इन्फेक्शन। ओके, तो इसीलिए जो बॉडी फ्लूइड्स है, तो बॉडी फ्लूइड्स आपका मोस्ट कॉमन सोर्स है, ठीक है? तो बॉडी फ्लूइड इज द मोस्ट कॉमन सोर्स। तो इसको हम लोग फैलाते हैं। So HIV is found in the following bodily fluids of someone living with the virus. तो कौन किस किस बॉडी फ्लूइड में होगा? ब्लड, ओके, सीमेन एंड प्री-सेमिनल फ्लूइड, rectal fluids and anal mucus, vaginal fluids and breast milk. Okay, for you to get HIV, these body fluids need to get into your blood through a mucous membrane, via shared injecting equipments, or through broken skin. Okay, there is
not enough HIV virus in other body fluids like saliva, sweat to transmit from one person to another. Okay, someone living with HIV who has an undetectable viral load, meaning effective treatment has lowered down the virus, okay, in their blood levels, okay, cannot pass on HIV. तो ये सब आपको पता होना चाहिए। मीन्स जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसका ऑलरेडी वायरल लोड कम है, तो वो HIV खुद है नो डाउट, बट वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता। क्लियर? Simply having HIV does not means that you will what? You will get HIV. चलिए, तापरे HIV is the most infectious, okay, in the first 2 stages. Okay, माने जो first few weeks after infection. तो अगर उस तरह से नहीं हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग को क्या क्या से बचना है इसको जान लीजिए। The main ways you can get HIV are sex without a condom, having unprotected intercourse with someone who has HIV, particularly unprotected vaginal और anal sex, ठीक है। उसके बाद शेयरिंग इक्विपमेंट्स, ओके, अगर आप नीडल वीडल शेयर, दम मारो दम मिट जाएगा कर रहे हो तो कम से कम अपना नीडल लेकर जाना है। पास फ्रॉम मदर टू बॉडी बेबी, ओके। So a mother infected with HIV can pass on through these sources. उसी तरह D, contaminated transfusion. So receiving blood transfusions, blood products, etc. ये extremely risky है, and ये जो common man में ये main source of infection है। If adequate safety practices are not in place, healthcare workers can also be at risk. है कि नहीं? ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। If you think, इसमें एक नोट लगा दीजिए, if you think you have been exposed, the only way to find it is have a test. तो HIV टेस्ट कर लो। कौन कौन सा HIV टेस्ट होता है? इंडिकेटरी होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। क्यों? हमें आरएनए ढूंढना है, ओके, क्या जो प्रोटीन्स, जो एंटीबॉडीज, एंड कंफर्मेटरी को हम कहते हैं एलाइजा। फाइन, सो both these tests detect the presence of HIV antibodies in blood, ठीक है। कोई शक इससे आ रहा है आपका? बताइए, इससे कोई शक आ रहा है? एंटीबॉडीज हुआ है तो हाँ बोलो जोर से। सर एंटीबॉडीज क्रिएट हुए तो फिर उसे फाइट कर देना चाहिए। हाँ, तो अब उसका उत्तर भी खुद बताओ। ठीक है, अब इतना तो सिखा दिया हूं मैं तुम लोगों को। सर वो तो टी हेल्पर में एसोसिएट होता है ना, तो एंटीबॉडीज उसका क्या कर सकता है? क्या तू बोल रहा है? सोच के बोल। टी हेल्पर अफेक्टेड है तो फिर बी सेल्स कैसे जानेंगे वायरस इन्फेक्टेड है? एंटीबॉडीज कैसा है? बोलिए बोलिए, यू कैन टॉक। सर मैक्रोफेज में भी तो टी CD4 रिसेप्टर होता है, तो वो तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। यदि वो खुद इन्फेक्ट हो जाएगा तो वो फिर मतलब टी हेल्पर को तो बोलेगा, वो कोई हेल्पर सेल को बोलेगा नहीं, जो हेल्पर सेल ब्रेक करके टी हेल्पर और बी प्लाज्मा में ब्रेक करेगा।
हर समय सोच के बड़बड़ाए करो, ओके? ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक. आई एम आस्किंग यू व्हाट टेंशन यू शुड हैव. जब एंटीबॉडीज एक्चुअली पहले, आजकल तो और भी जल्दी जान पहचान में आ जाता है, ओके? आजकल और जल्दी पता चल जाता है. क्या मतलब? जो PREP हमने लिखा था वो क्या है? प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस. मतलब अगर आप पहले से मेडिसिन ले लेते हो, आप जानते हो आपके पार्टनर HIV इन्फेक्टेड है, मेडिसिन ले लो, है कि नहीं? तो तुम्हें नहीं होगा, ओके? चलिए, और डाउट सोचिए सोचिए, बिकॉज वो डाउट आना जरूरी है. क्योंकि पहले जब मैं पूछता था ना, लोग मेरे पे हंसते थे कि अगर एंटीबॉडी बन गया तो फिर ठीक क्यों नहीं हो जाता है? बताइए, अगर एंटीबॉडी बन गया है तो वो ठीक क्यों नहीं हो रहा है? सर दिस इज RNA वायरस, सो म्यूटेशन तो हो रहा है. ओ हवा मत करो, सोच सोच के बोलो. फास्टर. सोचो सोचो सोचो. बिकॉज ये सब, ये वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस पेन, so you should have known these answers. सोचिए सोचिए. Sir, because आप of मानने the को नहीं, common receptors. हाँ, बोले. Sir, जो common receptors. नहीं नहीं, डोंट वेस्ट माय टाइम. थिंक थिंक. वही है ना, आप लोग कुछ पढ़ते नहीं हो, सिर्फ ट्यूशन करते हो और कुछ नहीं. ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आप लोग को मैंने प्रॉब्लम आ रहा है. बताइए क्या किया जाए आपका. आई एम आस्किंग यू, एंटीबॉडी तो है, फिर बंदा ठीक क्यों नहीं हो रहा है? सर वो तो लाइसोजेनिक रहता है तो एक्सप्रेशन नहीं करता है, तो फिर Sir, the antibodies are not sufficient because coordination तो नहीं है ना between T and B, because T helper is affected. You can keep talking. चलिए, so HIV, what is an HIV test? Okay, so HIV tests for screening and diagnosis. HIV tests are very accurate, but no test, ये बहुत important है, can detect the virus immediately after infection. ये याद रख लो. मतलब ये बहुत इफेक्टिव है, बट उतना जल्दी नहीं बता सकता है. How soon a test can detect HIV depends upon different factors, including the type of test being used. Okay, there are 3 types of HIV diagnostic tests. Number 1 is nucleic acid tests. Number 2 is antigen antibody test, and number 3 is antibody tests. Now what are they? जो NATs है, that is called nucleic acid tests, तो वो हम लोग कर सकते हैं. NATs looks for actual virus in the blood, है कि नहीं? This test is very expensive and is not routinely used for screening unless the person recently had a high risk exposure. माने ये बहुत महंगा है ना, तो हम लोग unnecessarily इसको नहीं वो करते. It can usually detect HIV infection 10 to 33 days after an exposure. ठीक है, तो if you are sure
that you have had intercourse या if you had some infection, then आप चेक करा सकते हो, बट ये काफी महंगा है. ओके उसके बाद जो सेकेंड टेस्ट है वो है हमारा क्या, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट. Look for both HIV antibodies and antigens. Antibodies are produced by our immune system, है कि नहीं? When we are exposed to viruses like HIV, antigens are foreign substances that cause our immune system to activate. If one has HIV, an antigen called P24, okay, जो प्रोटीन है आपका, is produced even before antibody is developed. तो आप उसको ढूंढ सकते हो, है कि नहीं? तो antigen antibody tests are recommended for testing done in labs and are now common in US. An antigen antibody test performed in the labs, okay, labs on blood from a vein can usually detect HIV infection 18 to 45 days after exposure. There is also a rapid antigen antibody test. Okay, जिस तरह से अभी rapid corona test हो रहा है, okay, available that is done with a finger prick. ठीक है? तो antigen antibody test done with blood from a finger prick can take longer to detect HIV, 18 to 90 days test. तो देखो ये टेस्ट रैपिड क्यों है? बोलो, क्योंकि हम लोग उसका जल्दी से सॉल्यूशन ले सकते हैं और डिटेक्शन में देर हो रहा है. ठीक है? सो उसके बाद जो थर्ड टेक्निक है दैट इज एंटीबॉडी टेस्ट, है कि नहीं? तो एंटीबॉडी टेस्ट जो है, जो कि पहले सबसे कॉमनली यूज होता था, looks after antibodies to HIV in our blood or oral fluid. Antibody tests can take 23 to 90 days to detect HIV after an exposure. Most rapid tests and the only FDA approved HIV self-test are antibody tests. In general, antibody tests that use blood from a vein can detect HIV sooner after infection than tests done with finger prick. ठीक है? तो ये आपके 3 अलग अलग टाइप्स ऑफ टेस्ट्स हैं. ओके, नाउ कभी कभी क्या होता है, आपने जो टेस्ट किया उससे नेगेटिव आ सकता है. फाइन, you may get a negative report, but that does not mean that you are negative. एक दो बार और चेक कर लीजिए. An initial HIV test usually will either be an antigen antibody or an antibody test. If the initial HIV test is a rapid or cell, should we go to a healthcare provider to follow up the testing. If the initial HIV test is a lab test and it is positive, the lab will usually conduct follow-up testing on the same blood sample as the initial test. Although HIV tests are generally very accurate, follow-up testing allows the healthcare provider to be sure that the diagnosis is right. तो इसीलिए एक बार पॉजिटिव हो गए तो आप पॉजिटिव हो ऐसा नहीं है, वो दोबारा चेक करेंगे. एक बार नेगेटिव हो गए हो तो भी आप नेगेटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो फिर भी एक बार और चेक करेंगे. तो जितना बार चेकिंग हो जाए उतना अच्छा है. ओके, चलिए और बोलिए. सो दीज आर ऑल फ्रॉम गवर्नमेंट वेबसाइट्स, तो इसमें कोई वरी की फैक्टर नहीं है. चलिए, तो ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है. अब हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली हाउ इट वर्क्स. ओके, नाउ
how HIV works. So ये हमारा जो एनसीईआरटी का सुंदर सा फिगर है, हम उस रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। क्लियर? आपका प्यारा हमारा न्यारा। Now if you see this drawing, because ये ड्राइंग आपका एग्जाम में भी आएगा, तो ये आपका जो वायरस है, ठीक है, वायरस विद द कोर, ओके। अब ये दोनों आपका आ गया है इन द मीडियम, ओके, इट इज इन द मीडियम। सो वायरस इन्फेक्ट्स नॉर्मल, तो वायरल प्रोटीन कोट है, वायरस इन्फेक्ट्स नॉर्मल सेल। व्हाट नॉर्मल सेल? बोलिए। तो वायरस इन्फेक्ट्स मैक्रोफेज। नॉर्मल सेल, तो इस नॉर्मल सेल में क्या आएगा? और टी हेल्पर। not only, इसमें CD4 positive cells, okay, so all those cells which will have CD4 receptors, CD4 positive cells, like क्या मेन है मैक्रोफेजेस एंड T हेल्पर सेल्स, ठीक है। तो ये आपका जो मेन कंटेंडर्स है, ठीक है। अब वो आया एनिमल सेल के अंदर, एंड सपोज ये हमारा क्या है? सो दिस इज आवर टी हेल्पर सेल, ओके। तो सपोज ये हमारा सॉरी मैक्रोफेज सेल है, तो अब ये अंदर आया, सो ये कैसे अंदर आया? तो दिस इज बाय पिनोसाइटिक इंडक्शन, और इसको हम लोग सेल ड्रिंकिंग भी कह सकते हैं, ओके। ये पिनोसाइटिकली अंदर आ जाता है। व्हाई? बिकॉज मैक्रोफेजेस जो हैं, मैक्रोफेजेस, बिकॉज मैक्रोफेजेस आर अमीबॉइड सेल्स, समझ रहे हो? तो मैक्रोफेजेस अमीबॉइड सेल्स होते हैं, तो ये उनका नॉर्मल हैबिट है टेढ़ा मेढ़ा होना, ओके। Now viral RNA is introduced into the host cell, okay. ये है स्टेप 1, फाइन। स्टेप 1 आपका इन्फेक्शन हुआ। स्टेप 2, तो वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो ये हमारा स्टेप 2 है। तो दिस इज द वायरल डीएनए। ये स्टेप 3 क्या है? दैट इंटीग्रेशन, okay. Viral DNA incorporates with the help of integrase enzyme, ठीक है। तो with the help of integrase enzyme वो डीएनए को जोड़ देगा, फाइन। बस, तो अब ये चलता रहा। अब न्यू आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल, ओके। सो अब ये जो है इधर एक बीच में एक स्टेज ऑफ स्टेसिस आएगा। स्टेज ऑफ स्टेसिस या साइलेंस, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइसोजेनिक पीरियड, है कि नहीं? मतलब इस समय कुछ भी दिखेगा नहीं, ओके। ये एक लाइसोजेनिक पीरियड है, फिर ये स्टेज आता है, ओके। तो दिस इज, तो लाइटिक साइकिल इज स्टिम्युलेटेड, ओके, स्टिम्युलेटेड बाय सम फैक्टर्स। भाई कुछ फैक्टर्स होंगे जिससे लाइटिक साइकिल स्टिम्युलेट हो जाएगा, ओके। क्योंकि सब कुछ शांत था, तो अब ये फिर तोड़फोड़ करने का क्या सूझा? कुछ नीड है कि नहीं? तापरे वो न्यू वायरस बनाएगा एंड तोड़ के बाहर चला जाएगा, ओके। सो नाउ इट विल ब्रेक एंड गो टू द व्हाट? गेट आउट, एंड न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्ट अदर सेल्स, ठीक है जी। सो ये हमारा टॉपिक है। तो मेनली यहाँ याद रखेंगे,
mainly the HIV attacks first किसको? Okay, attacks the macrophages first. क्यों? क्योंकि आप जानते हो दे आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, तो वो जैसे भी हो उसको ढूंढेंगे. ओके, एंड ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का है मैक्रोफेजेस. तो उसके बाद बट macrophages do not die after क्या lytic cycle. क्यों? ओके, तो मैक्रोफेजेस काउंट कम नहीं होता. Yes. lytic cycle. This is because these cells are already क्या? Already diapedesis showing cells. Okay, so the membrane is repaired very soon. समझ रहे हो? तो जो मेम्ब्रेन टूटा है वो धड़ से रिपेयर हो जाता है, इसीलिए कुछ होने से पहले आपका वो नॉर्मलाइज हो जाता है. बिकॉज व्हाट विल हैपन, दे विल अट्रैक्ट दिस थिंग, है कि नहीं? नाउ उसके बाद T helper cells are क्या? Attacked later. But these cells succumb to the attack. क्यों? As they are not amoeboid cells. ठीक है? Now, generally the इसको क्या कहेंगे? Latent period is variable. Okay, जो generally the period of latency is variable. Okay, so generally the latent period is variable, and in this period there are no apparent क्या symptoms that can confirm HIV AIDS. है कि नहीं? तो कोई सिम्टम नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग एसिम्प्टोमेटिक स्टेज बोलते हैं. Now, fourth point, by the time symptoms are guessable, तो क्या होता है? T helper cell count is T helper cell count has fallen drastically low. So the number of days of survival is very less. Okay, तो अगर आपको जबरदस्ती पता चला कि इन्फेक्शन हुआ है, तो उस केस में आपको बचा पाना काफी मुश्किल होगा. अंडरस्टूड? बिकॉज इन दैट केस सेविंग यू इज नॉट सो इजी, क्योंकि हेल्पर सेल काउंट बहुत कम हो गया होगा. इतना कम हो गया है हेल्पर सेल काउंट
कि सरवाइव करना मुश्किल है, ठीक है जी, बिकॉज ऑलरेडी इम्यूनो डेफिशिएंसी हो गया है। यस, अगर आपको डाउट हुआ, सो if the infection is preempted, okay, then after the confirmation of the test, okay, so if the infection is preempted, then after the confirmation of test, helper cell count will not be very low. So proper treatment can increase life. Okay, means आप जी सकते हो. Okay, so if the infection is preempted, then after the confirmation of the test, helper cell can not be very low, so proper treatment can increase life. But the biggest truth of HIV/AIDS is what? Death. Okay, is death. माने उससे आप नहीं बच सकते। HIV/AIDS हुआ है तो आज मरोगे या कल, बट अगर हम जल्दी जान पाए तो डेज बढ़ाया जा सकता है। ओके, अगर हम जल्दी जान पाए, we can increase the number of days you will survive, but अगर नहीं जान पाए तो देर हो जाएगा। ओके, सर्वाइवल इज नॉट सो इजी। ओके, सो दिस इज द केस ऑफ एड्स। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट एचआईवी में क्या है? डायग्नोसिस। ओके, सो यस सर। इसीलिए डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। सो नाउ बहुत सारा ट्रीटमेंट पैटर्न है। ओके, तो भाई नथिंग कैन सेव ए पर्सन, but yes, death can be delayed. Okay, so nothing can save, but death can be delayed. So इसलिए हम लोग इसको ट्रीटमेंट पॉलिसीज बोलेंगे। ना ये तो हमने डिस्कस कर लिया। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन्स, है ना? तो आप ट्रीटमेंट एंड वैक्सीन्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। South Africa has the largest antiretroviral treatment program in the world, which gives people living with the virus the chance to live full and healthy lives. Here is more on where to get the treatment. तो एक्चुअली उन्होंने एक ऐसा प्लान बना लिया है कि है एड्स, कोई दिक्कत नहीं, बट आप ज्यादा जी सकते हैं। ठीक है जी। सो दिस इज द कंसेप्ट अबाउट HIV। ना इसलिए अगर फैमिलीज में है तो वो लोग ये दे देते हैं। ओके, ना उसके बाद जो biggest way one can save from HIV is what? बोलिए। It is the counseling. Okay, counseling is the biggest way one can. Hey, Max. Okay, now तो इसीलिए
Now, what is antiretroviral therapy? The treatment of HIV/AIDS with medicine is called antiretroviral therapy. It is recommended for everyone who has HIV. The medicines do not cure, but they do make it manageable. Okay, chronic conditions. They also reduce the risk of spreading to others. ये सबसे important. How it works? Okay, it reduces the amount of HIV load in your body, which helps by giving, okay, which helps by giving your immune system a chance to recover. Even though there is still some HIV in your body, the immune system should be strong enough to fight off infections and certain HIV-related cancers. Okay? So reducing the risk that you will spread to HIV. Okay? तो ये सबसे important है. Means भाई आप बच तो नहीं सकते, but ज़्यादा देर जी सकते हो. Okay? And means you can live more. Okay, and second thing, at least you will not spread. वो बहुत important है. Means you will not spread the disease. तो क्या क्या target है हमारा अभी? Okay, what are the different types so of medicines? Number 1, okay, number 2, okay, number 3 and माने उसका हार्मोन एंजाइम का काम बंद कर दो और क्या. न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, इंटीग्रेज इनहिबिटर्स एंड